गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर दिन की तरह आज भी मैंने सुबह उठ के पहले ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया, फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गया अपना न्यूज़पेपर, जो कि मैं करता हूँ द इंडियन एक्सप्रेस से। आज के पेपर में कुछ अच्छे वाले आर्टिकल्स थे, जैसे कि अभी ओडिशा में आलू का प्राइस बढ़ रहा है, तो ओडिशा के गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट से आलू का सप्लाई किया है। और वेस्ट बंगाल से जो आलू ओडिशा में नहीं आ रहे थे, तो फिर वेस्ट बंगाल के जो सेलर थे आलू के, उन्होंने ये बोला कि अब हम वेस्ट बंगाल को भी आलू नहीं देंगे खाने के लिए। तो फोर्सफुली वेस्ट बंगाल के सरकार ने अभी उड़ीसा को आलू सप्लाई चालू कर दिया है। कुछ स्टेट हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आसाम में जो आलू है वो रबी सीजन में ग्रो होता है। और कुछ स्टेट हैं जैसे कि उत्तराखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में आलू खरीफ सीजन में ग्रो होता है। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो, दैट इज 161 लाख टन। एक और आर्टिकल है जैसे कि शॉर्टेज ऑफ डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर resulted in a slow start of planting of wheat, mustard, चन्ना, मसूर etc. तीसरा आर्टिकल है इसरो's PSLV places 2 satellites of European Space Agency into orbit. अभी इसरो का PSLV यूरोप का एक मिशन है प्रोबा 3, इसको लॉन्च किया है और ये दोनों सैटेलाइट फॉर्मेशन होंगे जब भी ये 60,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ होंगे। देन भारतीय वायुयान विधेयक ने 90 साल पुराना एयरक्राफ्ट एक्ट को चेंज किया है। देन इकोनॉमी वाले पेज में कुछ आर्टिकल्स थे जैसे कि डीरेगुलेशन टू बी ए बिग थेम इन द अपकमिंग इकोनॉमिक सर्वे। देन उसके बाद ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्टेयर्स एट मंथ्स लॉन्ग कॉपर शॉर्टेज। बस आज के पेपर में इतना ही था। फिर इसको खत्म करके मैंने चालू किया अपना करंट अफेयर, जो कि मैं करता हूँ वाजीराम के साइड से। और आज मेरा दिन था बस ऐसे एक मिक्स चैप्टर करने का। पहले मैंने किया नैनो बबल्स एंड इट इज 70 to 120 नैनोमीटर and 2500 times smaller than salt, and it has some unique physical and chemical property, and it is used in water treatment, agriculture, aquaculture and food processing. Then kiya C-STEM 2024. It is an annual event by the Atal Innovation Mission and the Office of Science and Innovation at the Embassy of Sweden. It inspires next generation of innovators to explore career in science, technology, engineering and math. Then किया है हीट शॉक प्रोटीन 70. HSP 70 is a type of molecular chaperone. It plays a vital role in helping the other proteins fold into their proper shape and preventing misfolding. It also help in protein synthesis. Then मैंने किया है घरचोला साड़ी. It is called घरचोला और घरचोलू, which is the finest Bandhani work of Gujarat. It also received 27 GI tag of Gujarat. It is used in Gujarati weddings. It is woven on cotton or silk fabric and colored with red, maroon, green and yellow. Then kiya World Drought Atlas. It is launched by United Nations Convention to Control Desertification in collaboration with the European Commission Joint Research Center. It explains how human activity can increase drought risk, and measures highlighted in the atlas fall into 3 categories like governance, land use management and management of water supply and use. Then International Social Security Association. It is founded in 1927 under International Labour Organization. It promotes excellence in social security and administration. It has 4 parts of governance, that is General Assembly, Council, Bureau and Control Commission. Then किया है Homo zuluensis, a new species of ancient human with distinctively large skull. The brain size is 30% larger than the Homo sapiens. Then किया है Tikhir tribe. These are the indigenous Naga tribe in Nagaland. Their language is Naga Imchungru. They live from agriculture and hunting, and they believe in Christianity. And their famous festival is Songlak Nui. बस आज के करंट अफेयर में यही थे। फिर इसको ख़त्म करने के बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया। फिर उसके बाद मैंने फिर से चालू कर दिया करने अपना पॉलिटी। और आज मैंने पॉलिटी में किया है इलेक्शन लॉ वाला चैप्टर। इसमें मैंने किया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, देन डिलिमिटेशन एक्ट 2002, देन द रूल्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन। तो बस यही था इस वाले चैप्टर में, जो कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बस इसको मैंने अच्छे से हाईलाइट करके पढ़ा है ताकि थोड़ा याद रह सके, लेकिन आप इसको पढ़ भी सकते हो और नहीं भी पढ़ सकते हो। फिर इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और उसके बाद शाम के टाइम में थोड़ा पार्क चला गया, जैसे कि मैं रोज़ जाता हूँ इवनिंग वॉक करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आप दिन भर पढ़ रहे हैं तो फिर शाम के टाइम में ऐसे थोड़ा समय निकाल के चल लीजिए, ताकि थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाए और थोड़ा बॉडी भी फिट लगे।
फिर पार्क में 1 घंटे चलने के बाद मैं आ गया घर वापस, और घर आके मैंने फिर से चालू कर दिया करने अपना पॉलिटी। और इसमें आज मैंने किया है इलेक्शन रिफॉर्म वाला चैप्टर। मुझे चैप्टर थोड़ा बड़ा था तो इसको कंप्लीट करने में मुझे 1.5 घंटे या 2 घंटा टाइम लगा। और इसमें है जैसे कि कमिटीज रिलेटेड टू द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन अमेंडमेंट टू इलेक्शन लॉज, देन दिनेश गोस्वामी कमिटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म, देन वोरा कमिटी ऑन नेक्सस बिटवीन क्राइम एंड पॉलिटिक्स, देन इंद्रजीत गुप्ता कमिटी ऑन स्टेट फंडिंग इलेक्शन। ऐसे ही बहुत सारे कमिटीज है जिसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये टोटल 4 पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म बिफोर 1996, इलेक्टोरल रिफॉर्म ऑफ 1996, इलेक्टोरल रिफॉर्म आफ्टर 1996 एंड आखिरी में इलेक्टोरल रिफॉर्म सिंस 2010। और इसको भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हुआ है, जैसे कि लोअरिंग ऑफ द वोटिंग एज, डेप्यूटेशन टू इलेक्शन कमीशन, देन इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रपोजर्स, बूथ कैप्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, listing of names of candidate, disqualification for insulting the National Honor Act, prohibition on the sale of liquor, death of candidate, then time limit for by-election, allocation of time on electronic media, free supply of electoral rolls, then introduction of nota option, then introduction of VVPAT। फिर उसके बाद मैंने किया है वोटिंग बिहेवियर वाला चैप्टर। इसमें कुछ खास नहीं, जैसे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर थ्रू कास्ट, रिलीजियन, लैंग्वेज, मनी, पर्सनालिटी एंड रीजन एक्सेट्रा। तो ये था आज मेरा पूरा दिन का स्केड्यूल, जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स अच्छे से कवर अप किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आखिरी में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।